اب بات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کی۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت انٹر پروونشل آن لائن ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آن لائن کانفرنس میں تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم، سیکریٹری اسکول اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ کانفرنس کے انعقاد کا بنیادی مقصد موجودہ حالات میں تعلیم کے حوالے سے اہم مسائل پر تمام صوبوں سے مشاورت کرنا تھی۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے کہا صوبہ بھر میں اسکول کھلے رکھنے کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو آگاہ کرے ہیں وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت انٹر پروونشل آن لائن ویڈیو کانفرنس ہوئی۔ آن لائن کانفرنس میں تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم، سیکریٹری اسکول اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر شریک ہوئے۔ کانفرنس کے انعقاد کا بنیادی مقصد موجودہ حالات میں تعلیم کے حوالے سے اہم مسائل پر تمام صوبوں سے مشاورت کرنا تھا۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں اسکول کھلے رکھنے کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی کی گریڈ 22 میں ترقی۔ محکمہ سروسز نے کمشنر فیصل آباد کو پنجاب سے ریلیو کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی کی گریڈ 22 میں ترقی ہو گئی۔ محکمہ سروسز نے کمشنر فیصل آباد کو پنجاب سے ریلیو کرنے کی سمری ارسال کر دی۔ کمشنر فیصل آباد سے متعلق یہ خبر ہے کہ ان کی ترقی ہو گئی۔ گریڈ 22 میں ان کی پروموشن کا انتظار تھا اور اب خبر یہ ہے کہ ان کی گریڈ 22 میں ترقی ہوگی۔ محکمہ سروسز نے کمشنر فیصل آباد کو پنجاب سے ریلیو کرنے کی سمری ارسال کر دی۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی کی گریڈ 22 میں ترقی۔ محکمہ سروسز نے کمشنر فیصل آباد کو پنجاب سے ریلیو کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ آپ کو آگاہ کرے ہیں اہم خبر کے حوالے سے کمشنر فیصل آباد عشرت علی کی گریڈ 22 میں ترقی۔ محکمہ سروسز نے کمشنر فیصل آباد کو پنجاب سے ریلیو کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ جی بالکل، کمشنر فیصل آباد عشرت علی کی گریڈ 22 میں ترقی ہوئی ہے اور مزید آپ کو یہ بتائیں محکمہ سروسز نے کمشنر فیصل آباد کو پنجاب سے ریلیو کرنے کی سمری ارسال کر دی۔ کمشنر فیصل آباد سے متعلق یہ خبر ہے، ان کی پروموشن سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی پروموشن ہو چکی ہے، اب وہ گریڈ 22 میں ان کی ترقی ہو گئی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ اب محکمہ سروسز نے سمری ارسال کی کہ اب کمشنر فیصل آباد کو پنجاب سے ریلیو کر دیا جائے۔ اب کچھ کرونا کی بات کریں گے۔ کرونا کے بڑھتے ہوئے وار ماسک نہ پہننے والوں کو پھر سے جرمانے ہوں گے۔ ماسک نہ پہننے پر اب 100 روپے کا جرمانہ اور ساتھ 3 ماسک بھی ملیں گے۔ این سی او سی کو ماسک نہ پہننے پر 100 روپے جرمانے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ این سی او سی کی منظوری کے بعد ملک بھر میں اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ماسک نہ پہننے والے ہر شہری سے اسی وقت 100 روپے لیا جائے گا۔ جی بالکل، آپ کو آگاہ کرے ہیں کورونا کے بڑھتے ہوئے وار ماسک نہ پہننے والوں کو پھر سے جرمانے کیے جائیں گے۔ ماسک نہ پہننے پر اب 100 روپے کا جرمانہ اور اس کے ساتھ 3 ماسک بھی ملیں گے۔ این سی او سی کو ماسک نہ پہننے پر 100 روپے جرمانے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ این سی او سی کی منظوری کے بعد ملک بھر میں اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا، جبکہ ماسک نہ پہننے والے شہری سے اسی وقت 100 روپے بھی لیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کورونا کے بڑھتے ہوئے وار ہے اور ماسک نہ پہننے والوں کو پھر سے جرمانے کیے جائیں گے۔ ماسک نہ پہننے پر اب 100 روپے کا جرمانہ اور اس کے ساتھ 3 ماسک بھی ملیں گے۔ این سی او سی کو ماسک نہ پہننے پر 100 روپے جرمانے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ این سی او سی کی منظوری کے بعد ملک بھر میں اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ ہے۔ حکومت نے فیصل آباد کے 18 منتخب سرکاری سکولز میں ایک بار پھر بچوں کے کورونا سیمپل لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ منتخب کیے گئے سرکاری سکولز میں 1400 بچوں کے کورونا سیمپل لے کر محکمہ ہیلتھ کو بھجوائے جائیں گے۔ اس سے قبل ان سکول سے 3000 بچوں اور اساتذہ کے کورونا ٹیسٹ کروائے گئے، جن میں سے 7 طلبہ میں کورونا پازیٹیو آیا تھا۔ جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جہانگیر، اس سے متعلق اپڈیٹ کیجیے۔ جی، کورونا کی دوسری لہر کا خوف جو ہے اس پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک بار پھر سرکاری اسکول میں بچوں کی رینڈم سیمپلنگ کی جائے۔ اس حوالے سے پہلے مرحلے میں بھی فیصل آباد کے 18 اسکولز کو سلیکٹ کیا گیا تھا، جہاں پر کہا گیا تھا کہ ایسے اسکول جو کہ سلیکٹڈ ہیں وہاں پر بچوں کی سیمپلنگ کی جائے گی، رینڈم سیمپلنگ، اور ہر اسکول 100 کے قریب بچوں کے سیمپل کلیکٹ کر کے محکمہ ہیلتھ کو بھجوائے گا۔ اور اب دوبارہ جو انسٹرکشن دی گئی ہے اس کے مطابق فیصل آباد کے انہی 18 اسکولز کو کہا گیا ہے کہ اب دوبارہ سے چونکہ سیکنڈ لہر
लहर का खतरा है तो अपने रैंडमली बच्चों के सैंपल कलेक्ट करें। मजमूई तौर पर फैसलाबाद के इन स्कूलों को 1400 बच्चों के टेस्ट करने का जो है वो टास्क दिया गया है। इसी हवाले से प्रिंसिपल सईद अहमद जफर हमारे साथ मौजूद हैं। इस स्कूल के पहले भी कोरोना के सैंपल हो चुके हैं तकरीबन 200 बच्चों के, और अब मजीद 100 बच्चों के कोरोना सैंपल लेकर महकमा हेल्थ को भिजवाए जाएंगे। असल दूसरी लहर के हवाले से हुकूमत ने जो इंस्ट्रक्शन जारी की है, ये वही स्कूल हैं जहां पर पहले भी बच्चों के जो कोरोना सैंपल हो चुके हैं। अब दोबारा से हुकूमत ने कहा है कि मजीद 100 के करीब बच्चों के हर स्कूल जो है वो सैंपल कलेक्ट करके दे। क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि 15 सितंबर को 6 माह के बाद स्कूल रीओपन हुए, बैक टू स्कूल, और बड़ी गवर्नमेंट ने आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशंस और सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए स्कूलों को खोला। और अल्हम्दुलिल्लाह SOPs भी वाज़े तौर पे डिज़ाइन किए गए थे। आपने ये करना, जैसे सैनिटाइज़र है, हैंड वॉशिंग है, बच्चों का टेम्परेचर चेक करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और हम आज तक उन SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके खातिर खाद नताइज भी बरामद हुए हैं। मैं इस सिलसिले में ये ज़रूर कहूँगा कि क्रेसेंट स्कूल में इससे पहले 2 दफ़ा 2 फेजेज़ में 100 बच्चों के सैंपल हुए। उसमें हमने क्लास 4 के मुलाजमीन अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स की रेशो के हिसाब से हमने सैंपल कलेक्ट किए और बाद में हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को वो दिए, जहाँ पे उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 200 के 200 केसेस जो हैं वो नेगेटिव आए। अब चूँकि मुल्क के अंदर दोबारा ये जो कोरोना वायरस की जो लहर है वो दोबारा उठ रही है, तो सिचुएशन रोज़ बरोज़ जो है उनके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि दोबारा जो है इसको स्कूलों को एड्रेस किया जाए, ताकि बच्चों में खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती हो तो हम उसका कोई ना कोई सद्देबाब कर सकें। और इस सिलसिले में तीसरे फेज़ में भी 100 बच्चे जो हैं हम उसके सैम्पलिंग करने जा रहे हैं। अमली इक़दाम करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बेरोजगार नौजवानों के लिए बुरी खबर, अब सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। रेलवे हुकाम ने ग्रेड 5 तक की 3216 खाली असामियों पर बजरिया कुरानंदाजी भर्तियों का अमल रोक दिया। भर्तियां महकमे रेलवे में इस्लाहात के नाम पर रोकी गई। जी बिल्कुल, आपको आगाह करे हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए बुरी खबर है, अब सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। रेलवे हुकाम ने ग्रेड 5 तक की 3216 खाली असामियों पर बजरिया कुरानंदाजी भर्तियों का अमल रोक दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बुरी खबर है वो सामने आई है। महकमा रेलवे ने बजरिया कुरानंदाजी भर्तियों का अमल है वो रोक दिया है, और ये भर्तियों पर अमल जो है ये इस्लाहाती स्कीम के तहत है वो रोका गया है। और ज़राए के मुताबिक CO रेलवे की तरफ से एक मरासला जो है वो मुल्क की 7 रेलवे डिवीज़न को पहले ही अरसाल है वो किया जा चुका है, जिसके मुताबिक तमाम जो भर्तियाँ थी जिनमें ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के मुलाजमीन की बजरिया कुरानंदाजी भर्तियाँ थी उनके अमल को रोकने की हिदायत थी वो की गई थी। और कुल जो असामियाँ थी वो 8772 असामियों के ऊपर बजरिया कुरानंदाजी भर्ती का अमल था वो शुरू होना था, जिनमें से रेलवे की 7 डिवीज़न में 5062 असामी पर जो भर्तियां हैं वो मुकम्मल की गई, जबकि 3216 खाली असामी पर भर्तियों का अमल है वो फिल फौर तौर पर रोकने की हिदायत हैं वो जारी की गई थी। जबकि अगर बात करें भर्तियों की तो लाहौर डिवीज़न में 258 असामियों के ऊपर भर्तियां हैं उसको रोका गया है, जबकि कराची डिवीज़न की 1618 असामियों के ऊपर जो भर्तियां हैं वो रोक दी गई हैं। पेशावर डिवीज़न में 584, कोयटा डिवीज़न में 542 खाली असामियों के ऊपर जो भर्ती का अमल है उसको रोकने की हिदायत हैं वो CO रेलवे की तरफ से जारी की गई थी। और मुल्तान डिवीज़न के 94 और सखर डिवीज़न में 43 खाली असामियों के ऊपर जो भर्तियां का अमल है वो रोका गया है। अगर बात करें कुल असामियों में से 476 असामियाँ थी वो TLA मुलाजमीन के लिए है वो मुख्तस की गई थी, और 20 असामियों पर जो ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के कवानीन जारी कर दिए। उम्मीदवारान इंतखाबी मुहिम पर 50 लाख से ज्यादा फंड्स खर्च नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए कवानीन जारी कर दिए। कवानीन के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नेबरहुड एंड विलेज पंचायत काउंसिल्स के बरक्स जमाती बुनियादों पर होंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक एक तरफ अवाम की तरफ से भी इंतजार किया जा रहा है। खजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खजाफी भट्ट, क्या अपडेट्स इनसे मुतालिक? जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कवानीन जारी कर दिए हैं, और इसके मुताबिक जो इलेक्टोरल कॉलेज ग्रुप जो होगा उस सियासी जमात का इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाएगा, और इस उम्मीदवार जो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे 50 लाख से ज्यादा फंड खर्च नहीं कर सकेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए लॉर्ड मेयर के जो इलेक्शन होंगे इसकी अखराजात की हद
50 लाख रुपए रखी गई है, जबकि काउंसलर के लिए 5 लाख रुपए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए अखराजात की हद 20 लाख रुपए होगी। काउंसलर के अखराजात की हद जो है वो 3 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी के मेयर और तहसील कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे, इनके अखराजात की हद 5 लाख होगी। इसी तरह काउंसलर की इंतखाबी मुहिम पर जो अखराजात की हद है वो 1 लाख मुकर्रर की गई है। कागजात की जो जमा करवाई जाएगी, इसकी फीस लॉर्ड मेयर के लिए 25,000, काउंसलर के लिए 15,000, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए 20,000 मुकर्रर की गई है। काउंसलर के लिए 10,000, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन की कमेटी के मेयर और तहसील काउंसिल के चेयरपर्सन के लिए 15,000 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। और बल्दियाती इंतखाबात के नए कवानीन के मुताबिक जो है, एक उम्मीदवार 2 सीटों पर भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। जी कजाफी, आखिर में इसमें भी कमेंट कीजिएगा, जिस तरह अभी कवानीन की तैयारी का मरहला जिस तरह शुरू हो गया और कवानीन बना भी दिए गए हैं, इस हवाले से अखराजात कितने होंगे, इलेक्शन से मुतालिक कुछ खबर है, कब होंगे? जी, इलेक्शन कमीशन तो बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर लहतो लाल से काम लिया जा रहा है। हल्का बंदी की जो फहरिस्त है वो भी तैयार कर ली गई हुई है। पंजाब हुकूमत ने जो है इलेक्शन कमीशन को कुछ 1.5 माह पहले ये दरख्वास्त की थी कि उन्होंने नेबरहुड काउंसिल्स के जो पहला मरहला है बल्दियाती इंतखाबात का, उसके नाम तजवीज़ करना है। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारी मुकम्मल है। कजाफी बट आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया। सिर्फ पंजाब हुकूमत की जानिब से भी अभी ताखीर की जा रही है बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक। शोहरा आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान की बैरून मुल्क से आमदन का सुराग लगाने के लिए एफबीआर की कार्रवाई में पेशरफ्त हुई है। एफआईए ने एफबीआर को राहत फतेह अली खान की 15 साला ट्रैवल हिस्ट्री फ्राहम कर दी। गुलकार ने बैरून मुल्क के 485 दौरे किए। शोहरा आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान की बैरून मुल्क से आमदन का सुराग लगाने के लिए एफबीआर की कार्रवाई में पेशरफ्त हुई। एफआईए ने एफबीआर को राहत फतेह अली खान की 15 साला ट्रैवल हिस्ट्री फ्राहम कर दी। गुलकार ने बैरून मुल्क के 485 दौरे किए। आपको अपडेट करेंगे। शोहरा आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान की बैरून मुल्क से आमदन का सुराग लगाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कार्रवाई में पेशरफ्त हुई। एफआईए ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को राहत फतेह अली खान की 15 साल की ट्रैवल हिस्ट्री फ्राहम कर दी। गुलकार से मुतालिक मजीद आपको बताएं कि राहत फतेह अली खान ने 15 साल में बैरून मुल्क के 485 दौरे किए। समाज से भी आपको अपडेट करेंगे। गंदम की देर से बुवाई हुई तो पैदावार में कमी होगी। महकमे ज़राअत तौसी ने गंदम के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, डिविजनल एग्री एडवाइजरी कमेटी का इजलास कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें डायरेक्टर एग्री एक्सटेंशन अब्दुल हमीद की जानिब से मजमूई तौर पर ब्रीफ करते हुए ये बताया गया कि गंदम की बवाई जो है वो उसका काम तेज़ी से जारी है। इन दिनों कई जगहों पर ना सिर्फ बीज जो है वो रियायती कीमतों पर दिया गया है, तो इसके साथ साथ खादें भी रियायती कीमतों पर दी जा रही हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कहीं पर भी पानी की किल्लत आड़े ना आए, इस हवाले से महकमा इनहार के साथ भी जो है वो राब्ते में है। इस मौके पर कमिश्नर ने महकमे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर किसान बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो अराकीन थे वो भी मौजूद थे। उनका कहना था कि कई एक ऐसी बातें जो है वो महकमे की जानिब से नहीं बताई जा रही, जिस वजह से काश्तकार को मुख्तलिफ मामलात के ऊपर आगाही नहीं मिल रही। का ये भी कहना था कि कई ऑफिसर जो हैं वो दफातर से भी नहीं निकल रहे, जिस पर कमिश्नर ने हिदायत की कि अब्दुल हमीद डायरेक्टर जो हैं वो इस मामले में जो है वो जिम्मेदारी का सबूत दें और अफसरान को फील्ड में निकालें। उन्होंने ये भी हिदायत की कि पानी चोरी के केसेस को रोका जाए। इसके साथ साथ कहीं पर भी अगर काश्तकारों को मसाइल का सामना है तो उसके हल के लिए भी बेहतरीन इक़दाम किए जाएँ। जी ठीक है रमजान, बहुत शुक्रिया। गारमेंट्स के कारोबार से मुंसलिक तबका भी मौजूदा हालात से परेशान है। ताजिर कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार ठप है। फजील अहमद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कारोबारी तबका जो है वो भी परेशान है। और कपड़े के कारोबार से मुंसलिक जो ताजर हैं, उसके बाद जो बच्चों के गारमेंट्स है उस कारोबार से मुंसलिक तबका जो है वो भी परेशान है कि सीज़न के दौरान भी जो कारोबार हैं वो महंगाई की वजह से नहीं चल रहे और दुकानदार जो हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं। अंजुमन ताजरान मंटगोमरी बाज़ार रजिस्टर्ड के सदर हाफिज़ ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी आप सब बताइएगा, क्या कहेंगे आप कारोबार के हालात के हवाले से, महंगाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार तो सारी मंदे का शिकार है,
लेकिन खुसूसन आज आप गारमेंट्स के हवाले से आए हैं, तो मेरे ख्याल में गारमेंट्स जो है बच्चों की वो तकरीबन 20 से 30% तक महंगी हो गई है। पहले तो ये आजकल सीज़न है शादियों का, बच्चों का, अगर सर्दियों का सीज़न है, यकीन करें नए कपड़े सेल पे लग गए हैं, सेल पे लग गए हैं। नए जो गारमेंट्स के जो नए आर्टिकल आए हैं वो सारे सेल पे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बाजार। आपने अपडेट किया फजील, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में फ्रांस की जानिब से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खाकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये आपको बराह रास्त ले चलते हैं। फैसलाबाद में फ्रांस की जानिब से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खाकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि शुरुका इजहार ख्याल भी करे। पाकिस्तान राह हक पार्टी, मुत्तहिदा उलमा पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम सीन के रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इसके साथ मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, समाजी और मज़हबी रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। और मकसद ये है कि फ्रांस में जिस तरह नामूस रिसालत के मामले पर मुल्क भर में रैलीज का इनेकाद किया गया, सेमिनार्स का इनेकाद किया गया, सरकारी सतह पर भी इसका इनेकाद किया गया है। तो अभी भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं फैसलाबाद में फ्रांस की जानिब से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खाके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान राह हक पार्टी, मुत्तहिदा उलमा पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम सिंह के रहनुमा शरीक हैं और यहाँ पर शुरुका इजहार ख्याल कर रहे हैं। तमाम को मेरा सलाम, सलाम सलाम अकीदत कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नहीं, आवाज़ बिल्कुल सही है, ज़्यादा आवाज़ करके ना कम खराब होता है। आवाज़ सही, मैं माइक कर लेना सही, कोई मसला नहीं है। तो फैसलाबाद में फ्रांस की जानिब से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खाके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और कॉन्फ्रेंस में देख सकते हैं आपके यहाँ पर शुरुका इजहार ख्याल कर रहे हैं। फैसलाबाद में फ्रांसीसी सदर के खिलाफ चिल्ड्रन अस्पताल में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला शरीक हुआ। इस वक्त रैली के साथ मौजूद हैं आजादार हुसैन, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी आजादार हुसैन, बताइएगा रैली से मुतालिक क्या कहना है मुजाहिरीन का? फ्रांसीसी सदर के खिलाफ चिल्ड्रन अस्पताल की जानिब से रैली निकाली जा रही है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला शरीक है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब भुट्टर रैली की क़यादत कर रहे हैं, जबकि DHQ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर हबीब भुट्टर से जानते हैं क्या कहते हैं। सर क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर हमारी जानें कुर्बान है। और ये जो फ्रांसीसी सदर ने ये जो हरकत की है, मज़मूम हरकत की है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इनकी तमाम जो हैं प्रोडक्ट्स उनका बाइकआउट करते हैं। और हम ना इनकी कोई दवाई इस्तेमाल करेंगे, ना हम इनका कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा अपने नबी से वादा है। और दूसरे नंबर पे ये कि आज ये जो है गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है प्रोटेस्ट कर ही रही है, रिकॉर्ड भी करवाया हुआ सारा गवर्नमेंट ने। हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो वासी हैं, जो हमारे सारे स्टाफ नर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हैं, उनमें शदीद गम गुस्सा पाया जाता है इस सिलसिले में कि नबी पाक की हुर्मत पे जो है इन्होंने हर्फ उठाया। सर अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। टोबर टैक्सिंग बार एसोसिएशन की कॉल पर दीवानी कवानीन में तरामीम पर हड़ताल, वकला अदालतों में पेश न हुए। तरामीम क्या है जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। कौंसिल की कॉल पर आज सुबह भर में जो दीवानी मुकदमात हैं उनमें जो तरमीम की जा रही हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार टोबर टेक्सिंग में भी आज वकला जो हैं अदालतों में पेश नहीं हुए और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सदर डिस्ट्रिक्ट बार टोबर एसोसिएशन चौधरी नासिर इकबाल और दीगर वकला मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इनके एतराज़ात क्या हैं। हुकूमत अगर यहाँ हाई कोर्ट इसमें तरमीम कर रही है, इस्लाहात ला रही है, तो क्या एतराज़ात हैं? तो सब ये बताइएगा मेन इतराज़ क्या है इस तरमीम में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज पंजाब बार कौंसिल की हदायत पर पूरे सूबा में जो हड़ताल है, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हुकूमत ने ये तरामीम की हैं, उससे जो सिविल प्रोसीजर कोड में जो तरामीम की गई हैं, ये ना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है इसको। असल मकसद ये होता है कि हमने तो कोर्ट्स को जो है वो असिस्ट करना होता है ना जी, अपने जो साइल है उसका केस प्लीड करना होता है। अब जो साइल हैं उनके लिए जो प्रोसीजर नया है उनका न कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, उनको बजाय कि आसानी के लिए उनको एक मुश्किल में डाल दिया गया है। और ये पूरे पंजाब की जो बार कौंसिल हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की और सिविल अपना तहसील लेवल की, उन सारों ने जो है उनकी दरख्वास्त पे जो है जो पंजाब बार कौंसिल ने जो है ये इकदाम उठाया है। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जल्द जो हैं जो CPC में जो तरामीम की गई हैं, इसके अलावा जो तरामीम की गई हैं उनको जल्द अज जल्द वापस लिया जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। जी, इन अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही। किसी भी